Okay, so let's continue our um, work that we were doing on the December exam revision, and we were basically on the question that was, and we were basically on the question that was about the flag, the Union Jack. Okay, and this basically question was almost all on probability, Pythagoras theorem, area, and stuff like that. That's it. There's no other learning outcome in that. But if you look at this question really technically, it was also to do with the importance of the word show that. Okay. Whenever you have questions that are termed with the keyword show that, it means the answer is given to you and you just need to show how you get to that answer. So similarly, if I want to show that the area of this cross is equal to 800, all I have to do is divide this into some rectangles or squares and I'll get to my answer of 800. मैंने भी इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. आप मार्किंग स्कीम में चेक कर लो. यू हैव 5 other methods over here जिसमें आप इसे जिस तरह भी डिवाइड करना चाहो कर लो. एंड दैट्स इट. और काफी लोगों ने बहुत इंट्यूटिव मेथड्स यूज किए थे. आई थिंक 95% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट दिस करेक्ट. ओके, कुछ ने ऐसे भी किया था, ये पूरा रेक्टेंगल ले लो और ये 4 रेक्टेंगल जो ब्लैंक है ये माइनस कर दो. लाइक मेनी मेथड्स, यू कांट रियली पिन पॉइंट एनी वन विच वॉज करेक्ट. ऑल ऑफ देम वर करेक्ट. ओके, इसके बाद आगे आता है यू जस्ट गेट अ डायग्राम विच इज नोन एज डायग्राम 2 एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. दैट्स इट, मार्क्ड इन रेड. So कोई एंगल निकालने के लिए the only technique that you guys have learned so far is trigonometry. यानी जब हम trigonometry की कोई fraction बनाए and we take its inverse. लेकिन आपको पता है कि trigonometry के लिए I need a right angle triangle. So luckily for me, the shape is a rectangle and I know that every corner of a rectangle is a 90 degree. So I could easily make my right angle triangle just like this. The green thingy that you see over here. कुछ लोग यहाँ हाफ पे भी बना सकते हो, but you don't really have dimensions over here, so it would have been a challenge for you to actually work out the lengths. आप हाफ हाफ कर सकते थे इसे, but nobody actually did that. So if I look at this full green triangle, I know that my opposite angle के सामने क्या होता है? Opposite. My opposite is 30. एंगल के साइड पे क्या होता है? दैट इज एडजेसेंट. ये ऊपर भी 60 मुझे दिया हुआ है और मैं इन सबको ऐड करके भी 60 बना सकता हूँ. दैट्स रियली इजी. So I know my lengths. Opposite or adjacent को tan link करता है. That is why I'm gonna use tan. I'm gonna plug in the values. और आपको पता है जब आप एंगल निकालते हो, both of the values need to be given to you. Just take the tan inverse, use your calculator, and you get the answer of 26.6. That's it. And as you move forward, then आपका अगला सवाल आता है. Now that you know what this theta is, you would know what this theta is. So like both of the thetas are actually the same because it's the same symbol. But let's zoom into this corner. Zooming into the bottom right corner of diagram 3. आपका सवाल है find the value of x. Find the value of x to the nearest one decimal place. ये हिंट जो मैंने आपको दिया ये एग्जाम में नहीं दी होगी, लेकिन चलो मैंने आपको गाइड करने के लिए हिंट दी थी बिकॉज दिस वाज द मोस्ट टेक्निकल या द मोस्ट लंबा पार्ट इन दिस फुल क्वेश्चन. ओके, और इसकी तैयारी मैंने आपको कराई हुई थी. इफ आई कैन समहाउ ओपन maybe reopen PDF from the last session. Yeah, if I can somehow open this document over here, this 80 page solution, और इसके अंदर अगर मैं आपको पाइथागोरस के सेक्शन में ले जाऊं, so I can show you this question. ये मैंने क्लास में भी कराया था और बिल्कुल इसी तरह. तो see this theta, you see this theta, ये अननोन है, ये अननोन है. अनलेस आई फाइंड दीज, यानी जब तक मैं ये नहीं निकालता बी और एच, मैं इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता. वो विच इज गोना बी माय नेक्स्ट पार्ट. ओके, इस ट्राइंगल का एरिया निकालो. पहले तो है कि ये एक्स निकालो. ओके, अगला है कि इसका एरिया निकालो. एंड दैट वाज प्रीटी सिंपल. इफ यू नो दैट ये पिंक 90 डिग्री एग्जामिनर ने जान के बनाया टू मेक यू गाइस फोकस ऑन दिस स्मॉल ट्राइंगल व्हिच इज गोना बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. और मैंने आपको बहुत दफा क्लास में बताया हुआ है, इफ यू आर एबल टू मेक अप अ राइट एंगल ट्राइंगल इन योर क्वेश्चन, यानी उसे आइडेंटिफाई कर लो, उसे देख लो, आपकी ईद हो गई. मीनिंग यू आर एलिजिबल टू फाइंड आउट एनी लेंथ, एनी साइड दैट यू वांट, because Pythagoras and trigonometry are so strong that they can allow you to find everything in a right angle triangle. It's just that it needs to be a right angle triangle. Okay,
सो इस राइट एंगल ट्रायंगल, ग्रीन राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने एक्स को निकालना है। ओके, आई नो दैट दैट इज द हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। अगर मैं पाइथागोरस यूज करना चाहूँ तो मुझे ये लेंथ और ये लेंथ दी होनी चाहिए, ये तो मुझे गिवन ही नहीं है। बट ऑल आई नो इज मैं पिछले पार्ट में ये एंगल निकाल चुका हूँ, दिस एंगल। मैं आपको ये डायग्राम नीचे भी दिखा देता हूँ। इफ आई गो टू द डायग्राम बिलो, मैं ये एंगल निकाल चुका हूँ, दैट वाज 26.6। एंड फोकस ऑन दिस कंप्लीट 6 सेंटीमीटर्स ओवर हियर। ये पूरा 6 सेंटीमीटर्स है। एंड आई नो दैट वी ऑल नो कि जो कंट्रीज के फ्लैग्स होते हैं दे आर जनरली सिमेट्रिकल। ठीक है, हर चीज बहुत प्रॉपरली इक्वली डिवाइडेड होती है, ऐसे ही है ना। एंड वी ऑल नो दैट ये जो आपका यूके का फ्लैग है, द यूनियन जैक, इट इज अ वेरी सिमेट्रिकल फ्लैग। अगर यहाँ आपके पास ट्रायंगल्स हैं, उतने ही ट्रायंगल्स इधर होंगे। अगर यहाँ कोई कुछ रेक्टेंगल्स हैं, इधर भी रेक्टेंगल्स उतने ही होंगे। सो इफ दिस इज 6 सेंटीमीटर्स, तो ये 3 3 में इजीली डिविजिबल होना चाहिए। ऑल्सो आपको खुद भी पता होना चाहिए दैट इफ यू हैव एन एंगल, यू जस्ट नीड वन साइड। एक कोई साइड आपको पता चल जाए किसी तरह से, आप एक्स आराम से निकाल सकते हो। देर इज नो वे दैट यू कैन गेट टू नो दिस साइड, क्योंकि यहाँ कोई हमें हिंट नहीं दी हुई। दैट इज वाई इफ आई if you look at the hint जो मैंने आपको दी थी, you can find the length of the dotted line, you can find the length of the dotted line by taking help from 6 centimeters, then find x। ये हिंट एग्जाम में नहीं गिवन थी, ये मैंने आपको दी थी अपनी तरफ से, इन होप्स के आप लोग कर लोगे। और काफी लोगों ने लाइक देयर वाज अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ये हिंट पिक कर ली थी, एंड दे वर एबल टू डू दिस। So when I label this triangle again, this is 26.6, this is 3 और ये x है। Opposite और hypotenuse को मैंने लिंक करना है। This is a mistake, ये hypotenuse होना चाहिए। uh, अच्छा हुआ कि हमने पॉइंट आउट कर ली है। I think I need to correct this, क्योंकि ये बहुत मेजर मिस्टेक है। You might get me fired for this, but I think हमें ये करेक्ट करनी चाहिए। Let's do this. जस्ट गोस टू शो यू दैट आई एम ह्यूमन। वैसे भी फॉर्मूला लिखने का और उसके कोई नंबर तो है नहीं। ये सिर्फ एक टाइम वेस्ट ही था। जस्ट डू दिस। ओके, एक सेकेंड। So somehow my pen is not really responding. I can maybe draw with touch if I can, लेकिन no, it's not. तो खैर ये मैं चेंज कर दूंगा, it's not really an issue anyways. So I think I should go back to the select mode. Yeah, all right. इसके बाद हमने ये सारी चीजें प्लग इन की, एंगल को प्लग इन किया, हाइपोटेन्यूस हमारा अननोन है, ऑपोजिट हमारा 3 है, हमने उसे प्लग इन कर दिया। एंड वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट विच वाज फाइंडिंग एक्स। और एक्स को जब हमने फाइंड किया तो वी जस्ट मूव डाउन, एंड बेसिकली आई गेट माई आंसर ऑफ 6.7 to 1 decimal place। वंस दैट इज डन, नाउ आई मूव ऑन टू द सेम डायग्राम जो मैंने आपको आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट में भी दी थी और अभी आपको दिखाया है। T1 का जो ब्लू ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालो। अब आपके ज़हन में होना चाहिए, और मजे की बात, आपको ये एरिया दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू शो दैट दिस एरिया कम्स आउट टू बी। इसके अंदर भी मैंने आपको हिंट दिया हुआ है, क्योंकि आपका जहन लाइक योर थॉट प्रोसेस शुड बी द फॉलोइंग। यार मैंने ट्रायंगल का एरिया निकालना, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ इट? इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। डू आई नो द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल? डू आई नो द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल? नो। जब तक मैं ये दो चीजें नहीं निकालूंगा, देयर इज नो वे ऑन अर्थ दैट आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक, तो सबसे पहले मैंने ये लेंथ निकालनी है। I know that this complete thing is a 25. I know what x is. अगर मैं 25 में से x माइनस कर दूं, automatically I can get b. That's my first approach. The second is मैंने h निकालना है। If I know this theta is 26.6, this also needs to be 26.6 because it's the same symbol. Same symbol का मतलब same value. मुझे लेंथ पता चल गई, मुझे एक एंगल पता चल गया। I can use trigonometry to find out this. और यही काम मैंने आपकी इस रिवीजन वर्कशीट में भी किया हुआ है कि ये निकालना बहुत आसान है, और इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री या पाइथागोरस या किसी भी मेथड से ये निकाल लोगे। एंड दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज। ये थॉट प्रोसेस भी मैंने आपको उसमें दिया था फाइल में। सो नो वन कैन एक्चुअली कंप्लेन कि सर ये सवाल पता नहीं क्या था।
You can't, allowed in here. Once that is done, just do half into base into height and you will get your answer of 84. ठीक है, ये सारा मेथड हमने यहाँ किया हुआ है एंड बेसिकली 83.8 आंसर आया था, उसने नियरेस्ट होल नंबर कहा था, सो दैट इज 84, राइट। इसके बाद हम चलते हैं आगे। गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल T2 इज 44, T1 का 84 है, वो भी शो दैट का सवाल था। यहां गिवन दैट यानी ये पहले से हमें दिया हुआ है। use your answer of T1 from question 5.4 to determine the area of all the blue triangles in the full flag। जरा हम full flag की शक्ल तो देख लें, कितने blue triangles हैं उसमें। So this is T1, this is T1, this is T1, this is T1। चार दफा T1 है, T2, 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 चार दफा T2 है। T1 की वैल्यू भी शो दैट का सवाल था, मुझे पहले से पता है। इवन इफ आई वाज अनेबल टू फाइंड x, इवन इफ आई वाज अनेबल टू फाइंड b और h और द एरिया, मुझे T1 की वैल्यू का पहले से ही पता है, सवाल में दिया हुआ था 84। मुझे T2 की वैल्यू का भी पता है, 44 दिया हुआ है। सो आई जस्ट नीड टू डू 44 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 84 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड दैट्स माय टोटल एरिया ऑफ ऑल द ब्लू रेक्टेंगल्स। द एंड, खत्म। सो दैट्स बेसिकली इट। और ऑब्वियसली मैंने वो सॉल्व नहीं किया हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्या था। वी नाउ मूव ऑन टू द स्टेटिस्टिक्स वाला सवाल, जिसकी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई हुई थी। सो दो फैमिलीज हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। वन फैमिली टेक्स द माउंटेन रूट, द अदर टेक्स द सिमरन रूट। और दोनों रूट्स के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, वो वीडियो में भी बताए हुए थे और वैसे नीचे जाएंगे तब भी हमें बताए जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज जस्ट अ बेबी क्वेश्चन, जैसे आपको कहा जाता है कुछ ऐड कर दो कुछ माइनस कर दो। जब आप लोग ये ट्रैवल कर रहे हो, यू नीड सम फूड बैरल्स एंड यू नीड सम वाटर बैरल्स, ओके, फॉर द रास्ता, राइट। वन फूड बैरल हैज दिस वेट, LB पाउंड्स होता है, और एक वाटर बैरल 44 पाउंड्स की है। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द बैरल्स दैट फैमिली फ्राई डिसाइड्स टू टेक। अगर वो 10 बैरल्स ऑफ फूड लेके जा रहे हैं और 20 बैरल्स ऑफ वाटर, सो सिंपली इस 30 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 44 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड आई थिंक यू वुड बी गुड टू गो। दैट्स इट। वंस यू डू दैट यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट अप, another plus minus वाला सवाल। Originally this question was a question which involved the fact that this value is going to be, I think, unknown, and you need to find this out using trigonometry. Lekin obviously you've done a lot of trigonometry in the Union Jack question. This was pointless to actually be given as another trigonometry question. So I basically found out the answer of this myself and just made it into a simple plus minus ka question. ठीक है? So अम्मा से अब ख्याल आया। Anyways, so the whole point is आपने A से C इस रिवर को क्रॉस करना है। This bridge from A to C is actually broken. So you had to take the long route from AB and then BC. So जरा टोटल डिस्टेंस तो निकाल दो जो आपने ट्रैवल किया A से C तक। Obviously this direct route is broken क्योंकि ये ब्रिज तो broken है। So all you had to do was 1.25 plus 0.998. That's it. खत्म। और ये सारी स्टोरी यहाँ दी हुई है कि द ब्रिज फ्रॉम A to C was broken, so the family had to take the route from A to B to C। तो ये सारा जरा डिस्टेंस तो निकाल दो। सिंपल प्लस प्लस माइनस का सवाल। सम ऑफ यू टुक इट एज अ ट्रिगोनोमेट्री या पाइथागोरस क्वेश्चन एंड मेस्ड इट अप बिग टाइम। अन्य वहां बिल्कुल सवाल सॉल्व किया हुआ था। यू डोंट रियली डू दैट, ओके। इफ इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन व्हिच इट वाज, इट्स बाउंड टू बी सिंपल, राइट। सो नेवर अज्यूम कि हमेशा एग्जामिनर आपको मुश्किल तरीन सवाल ही देगा, वो आसान सवाल भी दे सकते हैं सिंपल प्लस माइनस के, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे, फैमिली फ्राई चोज द सिमरन रूट। A summary of their journey is illustrated in the cumulative frequency graph below. However, some of the data has been lost. Cumulative frequency for the Simran route, okay, for family fry. ये number of days है इधर, right? और नीचे अगर हम चेक करें, दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन माइल्स, और ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वाज मेड बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी टेबल बिलो। ये टेबल और ऊपर वाला कर्व बिल्कुल एक ही है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द सेम डेटा। और ये स्किल आपको आती है कि अगर टेबल दिया हो तो मैं ऊपर कैसे कर्व बनाता हूं, अगर कर्व दिया हो तो मैं टेबल की मिसिंग्स कैसे कंप्लीट करता हूं। आई विल टेक यू बैक टू द PDF file and I'll show you exactly what I'm talking about. Okay. So I think I need to go, yeah, over here. मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ and this is where I will be.
सो द स्किल दैट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, ये क्वेश्चन 6 ये क्राइटेरिया डी का जो सीन था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मीन सॉरी आपका मीडियन, आपके क्वार्टाइल्स और वो सारा कुछ तो आपको निकालना आता है, बट अब गेम आगे आ गई है। अगर उसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल आपको दिया हुआ है एंड देयर आर सम मिसिंग्स, हाउ डू यू फिल देम अप, राइट? सो इसका बहुत आसान सा तरीका है। एक तरीका ये है, इफ यू नो द टोटल, राइट, if you actually can see what the total of your cumulative frequency is, आप उस टोटल में से इन सब को माइनस करके ये वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? क्योंकि याद याद रखो, दिस इज नॉट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ये वो कॉलम नहीं है जो ऐड 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 हो के यहां टोटल आ जाए। नो, दिस इज द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कॉलम which is telling you 0 से लेके 4 तक when I travel on the x axis मुझे y axis पे 3 मूव करना चाहिए। When I travel from 8 to 12 on the x axis मुझे 12 मूव करना चाहिए, राइट? ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। When I travel from 8 to 12 on the x axis, ये देखो ये तकरीबन 10 पे आया और 12 तकरीबन यहां आया 22 पे, सो आई ट्रैवल अ y axis वैल्यू ऑफ 12, ठीक है? सो ये इस तरह हमें पढ़ना चाहिए। सो इसके दो तरीके थे। नंबर वन, आई कैन समहाउ मूव माई माउस ओवर हेयर एंड ट्राई टू सी कि तकरीबन ये 26 मेरा टोटल बन रहा है, राइट? अगर मैं 26 में से ये सारे नंबर्स माइनस कर दूं, आई वुड गेट माई डिजायर्ड नंबर ओवर हेयर। डन। दूसरा तरीका क्या है? स्टैंड ऑन द एक्स एक्सिस एट 4, स्टैंड ऑन द एक्स एक्सिस एट 8 और दोनों वैल्यूज में फर्क नाप लो। ओके, जैसे मैंने यहां किया था, स्टैंड ऑन 2 ऑन दी एक्स एक्सिस, स्टैंड ऑन 4 ऑन दी एक्स एक्सिस, और इन दोनों फ्रीक्वेंसीज में कितना फर्क आया वो निकाल लो, एंड आई शो यू दैट हाउ दैट वर्क। मैं 2 पे खड़ा हुआ, मेरा आंसर आया 20। मैं 4 पे खड़ा हुआ, मेरा आंसर आया आई थिंक 44। इन दोनों में फर्क कितना है? यहाँ 46 आया था। इन दोनों में फर्क कितना है? 26। यही काम आपने वहां करना है, राइट? यहां मैं वो टोटल वाला काम कर नहीं सकता था बिकॉज आई आई हैड टू अननोन्स। वो टोटल वाला काम सिर्फ मैं तब कर सकता हूँ, यानी टोटल में से सबको माइनस कर दो, अगर एक अननोन होता। ओके, सो योर जॉब वाज एक्चुअली इजियर देन दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। चेकिंग योर आंसर्स, ऐड ऑल द फ्रीक्वेंसीज एंड सी दैट इट इक्वल्स टू द टोटल ऑफ 160। आप ये तरीका यहां भी कर सकते थे। वंस यू फाइंड दिस आंसर, इन सबको ऐड करके चेक तो कर लो कि क्या वो इस टोटल के बराबर आ रहा है, विच इज क्लोज टू 26। So devise your own methods of checking your answers, वरना you can't really be dependent on the teacher telling you कि क्या सीन है। So I stand at, मेरा सीन है 4 से लेके 8 तक, right? I stand at 4 and I go to this side, ये देखो I land at 3, clearly कोई इसमें ambiguity नहीं है। I stand at 8, मैं ऊपर गया, and I move to the left side and I clearly land at 10। 3 से लेके 10 तक कितना फर्क बनता है? आई थिंक इट्स अ 7, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस एक्चुअली वाज अ 7। ओके, लेकिन आई गेव द बेनिफिट ऑफ द डाउट टू दोज पीपल हु हैड वीक आई साइट, या जिनके पास टाइम कम था, उन्होंने जल्दी में इसे 6 लिख दिया या 8 लिख दिया, मैंने उन्हें भी फुल क्रेडिट दिया था। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने कोई नंबर लिखा था, दैट वाज जस्ट रबिश, और वो तुक्का था, उसके कोई मार्क्स नहीं थे। ठीक है, सिंपल सी बात। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जब मैं इन सबको ऐड करूं, आई डू गेट टू द टोटल ऑफ 26। सो जिस मर्जी एंगल से देखो, इट वाज ऑल करेक्ट। अब जब आपने ये टेबल पूरा फिल कर लिया, राइट, जब आपने ये टेबल पूरा फिल कर लिया, यहां फ्रीक्वेंसी का, ये तो मैंने मीन के लिए ये एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाया, यहां तक आपने फिल कर लिया, आपको पता होना चाहिए कि मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, और ये दो कॉलम्स क्या हैं। ये मैंने आपको रिवीजन सेशन में पूरा सॉल्व कराया था, ठीक है? अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ दिया हुआ है, आप उसके थ्रू मीडियन निकालते हो। मीडियन कैसे निकालते हैं? आप दरमियान में आओ, आई थिंक मैंने ऊपर शो किया हुआ है, आप दरमियान में आओ, विच इज 80 इन दिस केस, एंड जस्ट कम डाउन एंड दिस इज योर मीडियन। ओके, मॉडल इंटरवल कैसे निकालते हो? वो इंटरवल जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सो इसी तरह मैं यहां भी आपको बताऊं, स्टेट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दिस इज योर मॉडल क्लास। आपने ये यहां लिख दिया, यहां आप लिख नहीं सकते थे, आपने वैसे ही लिखना था। मीडियन निकालो, और ये मैंने आगे हिंट भी लिख दिया था, मुझे ये ऑनेस्टली लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को आप यूज करते हो मीडियन निकालने के लिए। सो यहाँ अगर 26 आपका टोटल है,
हाफ क्या होगा इसका? 13। 13 पे आओ, कम ओवर हेयर, कम डाउन, इट्स गोना बी समथिंग क्लोज टू 9.5 और समथिंग या 10। वो आंसर लिख दो, दैट्स इट। मीन निकालो। मीन निकालने के लिए आपको इस टेबल के साथ वो मिड वैल्यूज और प्रोडक्ट कॉलम बनाना पड़ेगा, एंड देन ऑल ऑफ दैट स्टफ, बिकॉज यू नो हाउ टू फाइंड आउट द मीन यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी टेबल लाइक दिस। आपको सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जस्ट लाइक दिस, और फिर इन मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मूव फॉरवर्ड इन योर क्वेस्ट, टू find out the mean. And then the sum of this is going to be the numerator. The sum of the frequency, as it always is going to be the denominator, and that's going to be your answer. So इसी तरह आपने यहाँ mid values का column बनाना है, which is going to be 2, 6, 10, 14 and 18. और इन mid values को आपने frequency से multiply करना है, that's going to be your numerator. Denominator आपका total frequency होगा, which is 26, and that's it. Okay, 10 minutes are left. Let's wind it up. इसके बाद यूजिंग योर आंसर टू पार्ट सी, ये भी मैंने हिंट के तौर पे लिखा था, ये भी मैंने हिंट के तौर पे लिखा था। ओके, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज द न्यूमरेटर ऑफ द मीन, एंड दिस इज द डिनोमिनेटर ऑफ द मीन। Because if you look at these answers, आपको पता होना चाहिए कि 502 डिवाइडेड बाय 39 इज गोना गिव मी 12.87, राइट? ये मैंने आपको जब ये सवाल करा रहा था, मैंने आपको ये तब भी बताया था कि दिस 788 एंड दिस 160 ये मीन से आए हैं। सम, टोटल आवर्स, टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अपना एक्स और वाई एक्सिस देखो, व्हाट आर दे? आपका एक्स एक्सिस आवर्स है, आपका वाई एक्सिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो कभी भी ब्लाइंडली इन चीजों को कैलकुलेट नहीं करते, प्लीज रिमेंबर दैट। मिड वैल्यूज जो आपकी हैं, दोस कॉरस्पॉन्ड टू आवर्स, ये आवर्स के लिए है, ठीक है? इसी तरह इफ आई लुक एट माई एक्स एक्सिस ओवर हियर, इट्स माइल्स, ओके, डिस्टेंस, एंड इफ आई लुक एट माई वाई एक्सिस ओवर हियर, दैट्स नंबर ऑफ डेज, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ डेज, दिस इज माई डिनोमिनेटर। सो टोटल नंबर ऑफ डेज यानी टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ योर मीन, ठीक है? And obviously the numerator is the total distance traveled, uh, that is going to be the numerator in your case. और इन्हीं की डिवीजन जो है वो आपको मीन देगी, so the numerator of the mean and the denominator of the mean get you the actual mean when you do this division. और ये आप फैक्ट यहां से भी चेक कर सकते हो, बेशक अभी ट्राई कर लो, 502 डिवाइडेड बाय 39 ये आंसर आएगा। नाउ आपने ये पूरा टेबल फिल कर लिया एंड दिस वाज 8 मार्क्स, राइट? डोंट से कि मैंने इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं कराई, बिल्कुल डिट्टो कॉपी इसी किस्म का सवाल आपको पूरा सॉल्व कराया था। ओके, अब इवन अगला पार्ट है, उसकी भी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई थी। ये तो सारा फैमिली फ्राई का था ना, फैमिली केन चोज द माउंटेन रूट, और उनका डेटा ये सारा निकला। आपने अपना डेटा यहां फिल किया हुआ है, फैमिली केन का डेटा सारा यहां है। एंड देयर इज सम आल्सो डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ द रूट्स। सिमरन रूट जो फैमिली केन फ्राई की थी, माउंटेन रूट जो फैमिली केन की थी, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस ये भी हैं। ये जान के एग्जामिनर ने आपको दोबारा दिया है टू री एम्फसाइज कि ये जो बातें वीडियो में कही गई थी ये फजूल नहीं था, ये आपने याद रखनी है, ठीक है? दिस इज आवर मेन बुलेट पॉइंट्स वाला सवाल जो हम जनरली हर क्राइटेरिया डी के सवाल के एंड पे करते हैं। उसका पहला पार्ट हमेशा हमेशा ये होता है, टू रेलेवेंट फैक्टर्स। ओके, अगर आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी रूट पिक करनी है, व्हाट आर द रेलेवेंट फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर? एक तो है द ट्रेडिंग, ओके, दूसरा है द लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है, तीसरा है द फैसिलिटीज ऑन द रूट। आपको पता है कि एक रूट बहुत बम्पी है, उसमें आपको ज्यादा फूड और वाटर कैरी करना पड़ेगा, और दूसरा रूट जरा इजी गोइंग है, वो इतना माउंटेनियस और इतना बम्पी नहीं है, उसमें आपको ज्यादा फूड और वाटर की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ट्रेड कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर। द बेसिक प्राइमरी रीजन ऑफ दिस जर्नी इज टू ट्रेड, और आपको पता है कि माउंटेन रूट हैज मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडिंग रादर देन द सिमरन रूट। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं which can help you decide in checking which route to take. अब प्लीज जब आप फैक्टर्स लिखो ना, उन्हें जस्टिफाई करने ना बैठ जाओ। आप
आप खोल के निकाल लो, जितनी भी मैंने आपको क्राइटेरिया डी की पास पेपर की प्रैक्टिस कराई है, को दो तीन सवाल तो फुल फ्लेज कराए थे, और शायद थोड़े से यहाँ भी कराए हों। अच्छा सॉरी, यहाँ नहीं कराया था। तो आई ऑलवेज जस्ट राइट बुलेट पॉइंट्स विदाउट एक्सप्लेनिंग देम, बिकॉज द एक्सप्लेनेशन एक्चुअली कम्स अप व्हेन आई डू सम सॉर्ट ऑफ अ डिसीजन, कि जरा जब आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस और सारी कैलकुलेशन कर ली, अब मुझे बताओ कि अगर आपके इख्तियार में होता, अगर आपने डिसाइड करना होता कौन सी रूट लेनी है, तो आप कौन सी करते। तब आप जस्टिफाई करते कि कंसिडरिंग ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एंड द कैलकुलेशंस एंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, आई वुड हैव चोजन दिस रूट बिकॉज ऑफ दिस। ओके, एनीवेज, कैलकुलेशन वाला पार्ट वैसे ही, कैलकुलेशन वाला जो मैंने सारा आपको टेबल फिल कराया है पास पेपर के अंदर, उसका बुलेट पॉइंट यहां था। लेकिन आई थॉट कि वो बहुत ज्यादा जंबल अपना हो जाए, पहले ही आप लोग एक बड़े से सवाल को देख के डर डर जाते हो। सो आई मूव द कैलकुलेशन पार्ट सेपरेट इन अ क्वेश्चन लाइक दिस। ओके, इस कैलकुलेशन को और इस कैलकुलेशन को यूज करो टू आउटलाइन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू रूट्स। ओके, सो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस का सवाल मैंने आपको यहां भी कराया था। कंपेयर बोथ रिजल्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द टू डेटा टेबल्स। इन दोनों टेबल्स में क्या आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है, क्या डिफरेंस आ रहा है नजर। ओके, सॉरी अबाउट दैट। सो जैसे आपको यहां नजर आ रहा है कि दे हैव इक्वल मॉडल इंटरवल, इसका मीडियन ज्यादा है, इसका मीन ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर द सेम, लेकिन टोटल आवर स्पेंड यहां ज्यादा है। एंड ऑल्सो ये वाली स्टेटमेंट भी कि एक गेम इजियर टू प्ले है, एक नहीं थी। सो इसी तरह यहाँ जितने आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, बता दो। मॉडल क्लास यहाँ ज्यादा थी, यहाँ कम है, यहाँ मीडियन कम था, यहाँ ज्यादा है, यहाँ मीन कम था, यहाँ ज्यादा है, एंड सो ऑन। और यू ऑल्सो नीड टू टेल अबाउट दिस डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों रूट्स में। एक ट्रेडिंग के लिए फीजेबल है, एक नहीं है, एक का बहुत बम्पी और मुश्किल रूट है, माउंटेनियस है, दूसरा बहुत क्लीन और स्टेबल है, सो ऑन। यू हैड अ लॉट टू चूज फ्रॉम, और ये लिटरली सिर्फ 3 मार्क्स का था। जिसने तीन सिमिलैरिटी या डिफरेंस लिख दिए थे, उसे पूरे नंबर मिल गए थे। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये भी मैंने आपको कराया हुआ था। जस्ट मूव डाउन, ये देखो, जस्टिफाई द एक्यूरेसी ऑफ योर आंसर। इनएक्यूरेट क्यों? जब आपने मीन निकाला, इट्स एन एस्टिमेट, बिकॉज यू यूज द मिड वैल्यूज ऑफ ईच इंटरवल, और आपको पता है कि मिड वैल्यूज एस्टिमेट होती हैं। मीडियन भी एस्टिमेट है, बिकॉज वी यूज्ड द कर्व टू एक्चुअली फाइंड इट, हमने कोई फॉर्मूला तो यूज किया नहीं। और आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हर बंदे का बनाने का अपना तरीका होता है। कोई कर्व को ज्यादा स्टीप कर देता है, कोई कर्व को ज्यादा जरा स्लोली उसे राइज कराता है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर आर्टिस्टिक एबिलिटीज, राइट। और इसी तरह की चीजें आपने लिखनी थी, एंड यू वुड हैव गॉट फुल मार्क्स, और मार्किंग की में एग्जैक्टली यही लिखा हुआ था। वी जस्ट हैव 2 मिनट्स लेफ्ट, उसमें हम सीक्वेंसेस का सवाल चेक कर लेते हैं। सो सीक्वेंसेस के अंदर सबसे पहले, दिस इज अ अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसका जनरल रूल था 2n+2, एंड मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट। एक ही गलती जो आप सब ने की थी, L इक्वल्स टू 2n+2। अक्सर लोगों ने ये L का वर्ड नहीं, L का लेटर नहीं लिखा जनरल रूल के अंदर, जबकि मैं बहुत दफा कहता हूं यूज द सिंबल्स करेक्टली। L इक्वल्स टू 2n+2। वेरीफाई प्रिडिक्टेड टर्म्स पे करते हैं वंस अगेन। आगे हमारे पास ये वाला टेबल है, हमने ये सब बुलेट पॉइंट्स करने थे फॉर द कॉलम एरिया। लेस देन 2 मिनट्स लेफ्ट, लेट्स डू दिस। डिस्क्राइब फॉर एरिया, आप कैसे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक सीक्वेंस विद अ कॉमन सेकंड डिफरेंस ऑफ, आई डोंट नो, मे बी 8 और समथिंग, मुझे नहीं याद। ऑल आर स्क्वायर नंबर्स आप कह सकते हो, बिकॉज ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। ऑल आर ऑड नंबर्स आप ये भी कह सकते हो। इजी सीन, इतने आंसर्स हैं कि आपने कोई से दो लिखने थे, एंड आई फेल टू रियलाइज के लोग ये गलत कैसे करते हैं। ओके, एनीवेज, राइट डाउन द जनरल रूल। ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंस है, तो इसका जनरल रूल आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से निकालना था। वंस अगेन द सेम, ऑलमोस्ट द सेम मेथोडोलॉजी जो आपके क्राइटेरिया बी का जो एक समेटिव हुआ था बिल्कुल इस एग्जाम से पहले, बिल्कुल वही सवाल था ये। वो स्क्वायर था, ये ट्रेपीजियम था। ओके, टेस्ट आपने कर लिया गिवन टर्म्स पे, वेरीफाई आपने कर लिया प्रिडिक्टेड टर्म्स पे, जस्टिफाई आपने कैसे किया। जस्टिफाई के दो तरीके थे। नंबर वन, use the formula for area of trapezium, which is sum of parallel lines divided by 2 multiplied by height. These are your parallel lines.
पहली पैरेलल लाइन के अंदर इसका जनरल रूल डालो, दूसरी पैरेलल लाइन के अंदर इसका जनरल रूल डालो, डिवाइडेड बाय 2 करो, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये जनरल रूल डाल दो. वंस यू डू ऑल द अलजेब्रा यू वुड एंड अप विद द सेम जनरल रूल जो आपने पार्ट 3 में निकाला था. लेकिन इसका एक और इंट्यूटिव मेथड भी था. जस्ट 1 minute इज लेफ्ट. कैन यू रियलाइज दैट the area column is actually the square of the height column? So if you can just find out the general rule of this column, which was I think 2n plus 1, आप 2n plus 1 की होल ब्रैकेट का स्क्वायर लो, ऑटोमेटिकली ये आंसर आता है इसका जनरल रूल ऑटोमेटिकली. सो इट वाज. और कुछ लोगों ने ये किया है, ये मैं एम ही नहीं कह रहा. सम पीपल वर एक्चुअली स्मार्ट इनफ who did not have the full time to actually do the full justification through the formula of area of trapezium. उन्होंने सिंपली इसका जनरल रूल निकाला, उसका स्क्वायर किया और आंसर निकाल लिया. दैट्स इट. सो that finishes our lesson. Time भी खत्म हो गया. All the best, guys.